محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ کبھی کسی عورت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات پہنچتی تو آپ یوں نہ فرماتے فلاں کو کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ آغاز خبر کی نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ ووٹر لسٹ میں ایک سے زیادہ ووٹ رکھنا قانونی جرم، فارم 7 کے ذریعے اضافی ووٹوں کو حذف کرے ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی۔ عوام کو گمراہ کرنا بند کرے، فلمی ڈائیلاگ سے سیاست نہیں چلتی، اگلے انتخابات میں عوام جواب دے گی۔ آرمور ایم ایل اے راکیش ریڈی پر ایراوتی انل کا تیکھا وار۔ نظام آباد بائی پاس روڈ پر المناک سڑک حادثہ، ٹاٹا ایس گاڑی اور آئچر میں تصادم، ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق، پولیس نے کیا مقدمہ درج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ووٹر لسٹ میں ایک سے زیادہ ووٹ رکھنا قانونی جرم، اگر کسی کے پاس مختلف علاقوں میں ایک سے زیادہ ووٹ رہنے پر وہ فوری طور پر فارم 7 کے ذریعے اضافی ووٹوں کو حذف کرے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی کا بیان۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے اپنے جاری کردہ صحافتی اعلامیہ میں کہا کہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کی دفعات کے مطابق ووٹر لسٹ میں ایک سے زیادہ ووٹ کا ہونا اور غلط معلومات دینا قابل سزا جرم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دفعہ 17 کے سیکشن کے تحت کوئی بھی شخص قانونی طور پر ایک سے زیادہ حلقوں کی ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرانے کا حقدار نہیں ہے۔ دفعہ 18 کے تحت کسی بھی شخص کو کسی ایک حلقے میں ایک سے زیادہ مرتبہ ووٹ کے طور پر رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ دفعہ 31 کے تحت ووٹر لسٹ میں ناموں کی تیاری، تصحیح، اندراج یا حذف کرنے کے دوران کسی بھی شخص کے لیے جان بوجھ کر غلط معلومات یا تحریری اعلامیہ جمع کروانا سنگین جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو 1 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائے گی۔ کلکٹر نے مشورہ دیا کہ تمام رائے دہندگان کو ان قانونی دفعات پر سختی سے عمل کرنا چاہیے اور اگر کسی کے پاس مختلف علاقوں میں ایک سے زیادہ ووٹ ہے تو وہ فوری طور پر فارم 7 کے ذریعے اضافی ووٹوں کو حذف کرے۔ ضلع پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے بالکنڈہ اسمبلی حلقے کے مینڈورا پولیس اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے اسٹیشن کے ریکارڈ، مختلف فائلوں اور زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عوامی تحفظ اور امن و امان کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پولیس افسران کو متعدد ہدایات جاری کی۔ ضلع پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے مینڈورا پولیس اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے ریکارڈ، زیر تفتیش مقدمات اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام مقدمات کی بروقت اور معیاری تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ سی پی نے کہا کہ علاقے میں بڑھتے سائبر جرائم کے پیش نظر اسکولوں، کالجوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں آگاہی پیدا کی جائے۔ انہوں نے ولیج پولیس افسران کو عوام سے مسلسل رابطے میں رہنے اور مقامی مسائل فوری طور پر اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے سرحدی علاقوں میں گاڑیوں کی کڑی نگرانی، روزانہ ٹریفک انفورسمنٹ، سڑک حادثات کی روک تھام، آن لائن بیٹنگ اور سائبر فراڈ سے بچاؤ نیز نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے مسلسل بیداری مہم چلانے پر زور دیا۔ دورے کے موقع پر آرمور رورل سرکل انسپکٹر، مینڈورا سب انسپکٹر اور دیگر پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ تلنگانہ اسٹیٹ منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین ایراوتی انل نے آرمور ایم ایل اے راکیش ریڈی کے تبصروں پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ
एमएलए तौहीन आमेज इल्जामात लगा रहे और अवाम को गुमराह करने की कोशिश बंद करें। तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन एरावत्री अनिल ने आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी के हालिया तबसरों पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि राकेश रेड्डी, आपके अपने गाँव में आपकी जात की अंजुमन में कोई आपको रुकनियत देने के लिए आगे नहीं आ रहा। आपके पास अपने और अपनी पार्टी के बारे में ऐसी बातें कहने की कम से कम अहलियत नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्मी डायलॉग कहेंगे तो लीडर नहीं बनेंगे। उनकी सियासी हैसियत और अवाम में उनकी हिमायत सबको मालूम है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उन्होंने ज़ाती तनकीद का सिलसिला जारी रखा तो अवाम उन्हें अगले इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अदल व इंसाफ के नाम पर अवाम को गुमराह करने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి ఆర్మూర్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నన్ను బండబూతులు తిడుతున్నారే ఇత్తురై నాకంటూ ఒక గౌరవం ఇవ్వకుండా ఇష్టం ఉంటున్నట్టు మాట్లాడి ఎట్లా మాట్లాడిండో చూడు. ఇదేనా ఏమంటావు? కాళ్ళు ఇరుకొడతావా? ఎమ్మెల్యే గారిది కార్యకర్త కొడుక చెప్తున్నా, చిట్టిగా కొడితే 1000 తుకడలు అయిపోతావు కొడుక. కాలి చిట్టిగా కొడితే హద్దులు దాటారనుకోండి. దీనికి రాకేష్ రెడ్డి ఏం చూడలేదు. మీరు గౌరవ శాసనసభను చూస్తున్నారు. నీ అయ్యా ఈఎన్ రావు నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి నేను వదిలేస్తున్నా. ధర్మాత్మను కడుపులో పుట్టినావు. నన్ను రైతురే అంటారు. నీ లెక్కెంత, నీ పత్రం ఎంతరా, నీ బతికెంతరా, నా గురించి మాట్లాడతావు. నువ్వు కొడుక అంటావా, అరే అంటావా, నన్ను పైరవికారు అంటావా, నేను ఇసుక అమ్మినలాగా కనబడుతుంది, ఇసుక అమ్ముతున్నా అంటావా. ఒక ఎమ్మెల్యే, నేను కూడా ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన 15 ఏళ్ళ కింద పనిచేసిన. నువ్వు ఇప్పుడు కాదు, నేను 34 ఏళ్ళకి ఎమ్మెల్యే అయినా. నువ్వు ఇప్పుడు మొన్నదాకా ఎటువైనావరా? నీ భాష ఏంది? ఒక ఎమ్మెల్యేగా అట్లా మాట్లాడచ్చా? ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నావు, అది పద్ధతేనా? అది నాకు తిట్టరాదా? నాకు నీకనే తిట్లు వస్తాయి. బండకేసి కొడతా. వచ్చే ఎన్నికల్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కాలిర కొడతా, నువ్వు నన్ను అంటావా, చిటికేస్తే 1000 తునకలవుతావు. ఇవన్నీ డ్రామాలు బంద్ చేయి. ఆ వేషం ఎట్లా ఉంటుందంటే, నేను ఆ సినిమాలలో వేషం వేసినట్టు ఉంటావు. నువ్వు ఒక లీడర్ లాగా ఉంటావు అనుకుంటున్నావా? నీ భాష కూడా ఆ సినిమా డైలాగ్ లాగా ఉంటుంది. निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जगतियाल केंद्रीय विद्यालय के लिए 5 एकड़ अराजी का अलॉट करना एक खुशाइंद फैसला है। ताहम तलबा के तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे और जमीन के अलॉटमेंट को बढ़ाकर 10 एकड़ कर दें। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जगतियाल जिला हेडक्वार्टर्स में कायम की जाने वाली केंद्रीय विद्यालय के लिए 5 एकड़ अराजी का अलाटमेंट खुशाइंद फैसला है। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने इंकशाफ किया कि उन्होंने तलबा की मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए अराजी मख्तस को बढ़ाकर 10 एकड़ करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खत लिखा। केंद्रीय विद्यालय एसोसिएशन के खवानीन के मुताबिक 5 एकड़ अराजी की कम से कम जरूरत है, लेकिन मेट्रो शहरों से बाहर वाक़े केंद्रीय विद्यालयों के लिए 10 एकड़ मुनासिब मियार है। एमपी ने वजाहत की कि अगर इजाफी जमीन है तो वसी क्लासरूम्स, लेबॉर्ट्रीज, खेलों के मैदान और मुस्तकबिल में तोसी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करने का मौका मिलेगा। एमपी अरविंद ने याद दिलाया कि उन्होंने पहले जगतियाल जिले के तलबा को मियारी तालीमी माहौल फ्राहम करने के मकसद से 10 एकड़ अराजी मख्तस करने की दरख्वास्त की थी। तलबा के तवील मुद्दती मफादात को जहन में रखते हुए एमपी अरविंद ने हुकूमत से अपील की कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे और अराजी मख्तस को बढ़ाकर 10 एकड़ करे। जिला कांग्रेस कमेटी डीसीसी सदर नागेश रेड्डी ने आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें पीसीसी सदर महेश कुमार गौड के खिलाफ गैर जरूरी बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। जिला कांग्रेस दफ्तर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नागेश रेड्डी ने दावा किया कि आरमूर की अवाम एमएलए की सियासी तारीख से बखूबी वाकिफ है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत की फलाई और तरक्याती सरगर्मियों से परेशान होकर अपोजिशन बेबुनियाद इल्जामात लगा रही। डीसीसी सदर ने कहा कि अगर राकेश रेड्डी अपने इस्तीफा के ऐलान पर कायम रहते हुए एमएलए के ओहदे से इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस भी सियासी मैदान में मुकाबले के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि एमएलए अपनी निशिस्त बचाने के लिए मजहबी सियासत कर रहे। नागेश रेड्डी ने सवाल उठाया कि राकेश रेड्डी ने कौमी सतह के अहम मसाइल खुसूसन नीट इम्तिहान पर खामोशी क्यों इख्तियार की। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे।
సంవత్సరాల లోపల ఎంతో అభివృద్ధి చేసిండ్రు. మీకు తెలుసు, గతంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండే 10 సంవత్సరాలు అప్పుడున్న మిగులు బడ్జెట్ 14,000 కోట్లు ఉండే పంచుకున్నప్పుడు, తెలంగాణ ఆంధ్ర విడిపోయినప్పుడు. ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు 69,000 కోట్ల అప్పు మాత్రమే ఉండే. అటువంటి రాష్ట్రాన్ని మా ప్రభుత్వం చేపట్టిన తర్వాత మాకు ఇచ్చిందంతా 8,13,000 కోట్లు ఇచ్చినాం అప్పుతోని. అటువంటి దాన్ని మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన వాగ్దానాల్ని ప్రతి ఒక్కటి తూచనరకుండా అంచెలంచెలా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కటి మహిళలకు ఉచిత బస్ అన్నం ఇచ్చినాం, పేద ప్రజలకు రేషన్ కార్డు ఇచ్చినాం, సన్న బియ్యం ఇస్తున్నాం గ్రామ స్థాయిలలో, 200 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ ఇస్తున్నాం ఈ గ్రామ స్థాయిలలో. నీకు అతి ముఖ్యమైనది గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న ఒకరికి, నగరంలో ఉన్న వారికి, పేద ప్రజలందరికీ కూడా ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇల్లు ఇస్తున్నాము. ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే మీరు చూసి ఓర్వలేక నీవు ఇష్టం వచ్చిన నీ ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి మాట్లాడుతున్నావే బిడ్డ. నీవు రాజకీయం గురించి మాట్లాడతలేవు, తెలిసినవాడు ఎవరు కూడా అటువంటి మాటలు మాట్లాడరు. నువ్వు ఈరోజు నీ యొక్క ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో ఏమో డెవలప్ చేసినాము 2.5 సంవత్సరాలలో. ఈరోజు మా మహేశ్వర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. गौशाला रोड पर गुज़िश्ता 2 दिनों से स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से इलाके में अंधेरा, जिससे मुकामी रिहायशियों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा बिजली की मुबैना लापरवाही पर MIM टाउन जनरल सेक्रेटरी शहबाज अहमद ने बरहमी का किया इजहार। फौरी तौर पर स्ट्रीट लाइट्स को बहाल करने का किया मुतालिबा। गौशाला रोड पर गुज़िश्ता 2 दिनों से स्ट्रीट लाइट्स बंद होने के बाद इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है, जिससे मुकामी रिहायशियों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। MIM टाउन जनरल सेक्रेटरी शहबाज अहमद ने महकमा बिजली की मुबैना लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुतअद्दी शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि अवाम की सहूलत और रात के औकात में तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर स्ट्रीट लाइट्स को बहाल किया जाए। हेलो यही साहब, ये भोजन रोड से 52 सपाड़ी जाते जो रास्ता है गौशाला, वो पोल्स के ऊपर जो लाइट्स थे पूरे शार्ट हो गए साहब। ये कल से शार्ट हो गए थे लाइट्स। अब रात में 1 बज रहा, दुनिया का अंधेरा है यहाँ पे। तो 2 व्हीलर पे और पैदल जाने वालों को दुनिया की परेशानी हो रही, कुत्तों का डर है, चोरों का डर है, फंक्शन से लोग आ रहे जा रहे, कामों से आ रहे जा रहे। वो स्ट्रीट लाइट वाला कौन है? गैर जिम्मेदार उन्हें शाम में 7 बजे डेली लाइट चेक करना ना। जून 5 का जो कौन है उन्हें उसको आप इमीडिएट बुलाओ, यहाँ पे भेजाओ, नहीं तो उसको निकाल के फेंको उसको नौकरी पे से। लाइटा चेक करके जाना उन्हें घर गुजारा। तो बारिश का मौसम है, साइडों से पूरे गड़े हैं यहाँ पे। कल एक बुजुर्ग आदमी गिर गए गाड़ी पे से। अभी हमारे टाउन सदर शकील साहब भी बात करें कमिश्नर साहब से, म्यूनसिपल मैसेज रखे फ़ोन पे बात करें, आपको करते होंगे फ़ोन, आप इमीडिएट स्ट्रीट लाइट वाले को भेजाओ। कहाँ वगैरह का प्रॉब्लम है क्या नहीं, गैर जिम्मेदार है उन्हें इमीडिएट चालू कराओ लाइटा। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गौशाला रोड पे रात में। ठीक है हम लोग यहीं। हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा हदफ के मुताबिक ज़िले में ऑयल पाम की काश्त के रकबे में मनसूबाबंद तरीके से इजाफा किया जाए। जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि किसानों को मैदानी अमल में भरपूर तरगीब देते हुए मौजूदा सीजन में जिला भर में 2000 एकड़ रकबे पर ऑयल पाम की काश्त को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुनक़दा जायजा इजलास में कलेक्टर ने ऑयल पाम की क्लस्टर वार पेशरफ्त का जायजा लिया और नंदीपेट मंडल के लक्कमपल्ली में मौजूदा ऑयल पाम फैक्ट्री के क़ियाम पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि यह मुकाम आइंदा रिफाइनरी के क़ियाम के लिए भी मौजू है और पड़ोसी अजला के किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। कलेक्टर ने प्री यूनिक कंपनी के नुमाइंदों को हिदायत दी कि ऑयल पाम की पैदावार जमा करने के मराकज़ किसानों की सहूलत के मुताबिक कायम किए जाएं। उन्होंने माकलूर, डोंकेश्वर, बालकोंडा, मोपकाल, मेंडोरा और सिरकोंडा मंडलों में खुसूसी मुहिम चलाने और हर मंडल में कम अज़ कम 100 एकड़ पर ऑयल पाम की काश्त यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऑयल पाम की काश्त पर सब्सिडी, इमदादी कीमत और दीगर सहूलियात फराहम कर रही, इसीलिए किसान इस मुनाफा बख्श फसल की तरफ राग़िब हो और अपनी आमदनी में इजाफा करे। इस मौके पर ज़राअत, बागबानी और प्री यूनिक कंपनी के हुक्काम ने शिरकत की। कामरेडी म्यूनसिपल हदूद में गैर मजाज लेआउट्स और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ म्यूनसिपल और
टाउन प्लानिंग हुक्काम ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद तामीरात को पुलिस की मौजूदगी में JCB मशीनों के जरिए मुनहदिम किया। कामरेडी शहर के 7वें वार्ड के विकास नगर इलाके में सर्वे नंबर 672, 675, 676, 677 और 678 में बगैर किसी सरकारी इजाजत के तामीर की गई सड़क और ड्रेनेज निजाम को म्यूनिसिपल और टाउन प्लानिंग हुक्काम ने पुलिस की मदद से JCB के जरिए मसमार कर दिया। हुक्काम के मुताबिक मुतल्लिका वेंचर को पहले ही इजाजत न होने के सबब नोटिस जारी किए गए थे, ताहम इसके बावजूद तामीराती काम जारी रखा गया, जिसके बाद अलल सुबह कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। कार्रवाई की इत्तला मिलने पर मुकामी काउंसलर के शोहर मंसूर मौके पर पहुंचे और इन्हेदामी कार्रवाई रोकने की कोशिश की। इस दौरान वो JCB मशीन के सामने बैठ गए और पुलिस व म्यूनिसिपल हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। बादशाह पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर कार्रवाई मुकम्मल कराई। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि म्यूनिसिपल और टाउन प्लानिंग की मंजूरी के बगैर किसी भी किस्म के लेआउट या तामीराती काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि किसी भी तामीराती काम से कबल म्यूनिसिपल और टाउन प्लानिंग महकमों से लाजमी मंजूरी हासिल करे ताकि मुस्तक़बिल में किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। కామారెడ్డి పురపాలక సంఘ పరిధిలో సర్వే నెంబర్ 672, 675, 676, 677, 678 దాదాపు 4 ఎకరాల 39 గుంటల్లో అక్రమ లేఅవుట్, అంటే ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా, ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి లేకుండా, DTCP నుంచి అనుమతి లేకుండా మరి లేఅవుట్ చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి గాను మేము 3 నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 3 నోటీసులకు ఎలాంటి వివరణ కానీ వాళ్ళ నుంచి సమాధానం కానీ రాలేదు. మరి ఆ ల్యాండ్ ఓనరు ముత్యంపేట శ్రీనివాస్ గౌడ్ అండ్ అదర్స్ది. దాని మీద మేము గత కొంతకాలంగా చెప్పనే ఉన్నాం, దీన్ని స్టాప్ చేసి మీరు అధికారికంగా లేఅవుట్ అప్రూవల్ చేయండి. మరి అధికారికంగా లేఅవుట్ అప్రూవల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అన్ని వసతులు కల్పించి దాంట్లో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నా కూడా సరిదేసి గౌరవ మరి కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మీకు అనుమతులు ఇప్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అయినా వినకుండా వాళ్ళు అట్లే ప్రొసీడ్ అవుతూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు. దానిని అరికట్టడానికి మరి ఈరోజు మన కామారెడ్డి పట్టణంలో చూస్తున్నాం, మరి ఏవి కూడా ఆథరైజ్డ్గా వెంచర్లు లేకపోవడం వల్ల రోడ్లు సరిగా లేక, రైళ్లు సరిగా లేక మనం చాలా నానా అవస్థకు గురవుతున్నాం. మరి ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే మరి పట్టణాభివృద్ధి జరుగుతున్నప్పుడు, జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అభివృద్ధి జరుగుతున్నప్పుడు మరి ఇలాంటి అనాథరైజ్డ్ లేఅవుట్లకు మరి మనము సహకరించవద్దు అనే ఉద్దేశంతో మరి ఆ అనాథరైజ్డ్ లేఅవుట్ను ఈరోజు మనం తొలగించడం జరిగింది. ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ AIBSS जिला सदर M बाबू राम नायक की क़ियादत में एक वफद ने रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद से मुलाकात करते हुए बंजारा बरादरी की तारीख, सखावत और रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतीर फंड्स फ्राहम करने का मुतालबा किया। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ AIBSS के जिला सदर M बाबू राम नायक की क़ियादत में एक वफद ने रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद से मुलाकात करते हुए बंजारा बरादरी की तारीख, सखावत और रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतीर फंड्स फ्राहम करने का मुतालबा किया। ये मुलाकात शहर के सुभाष नगर में वाक़ई रुकने पार्लियामेंट के कैंप दफ्तर में हुई, जहां AIBSS के नुमाइंदों ने एक याददाश्त पेश करते हुए मरकजी हुकूमत से बंजारा सखावती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी माली इमदाद फ्राहम करने की दरख्वास्त की। तंजीम के कायदीन के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट ने इस मुतालबे पर मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इस मौके पर जिला बंजारा सेवा संघ के सदर M बाबू राम नायक ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट से दरख्वास्त की गई कि वो इस याददाश्त को हुकूमत हिंद की वजारत सयाहत व सखाफत को रवाना करें और इस पर मुस्बित कार्रवाई को यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि 25 करोड़ रुपये के फंड्स मंजूर करके निज़ामाबाद में बंजारा म्यूजियम, संत श्री सेवालाल महाराज सखाफती कॉम्प्लेक्स, हुनरमंदी व तरबियती मरकज़, तलबा तरक्याती मरकज़ और दीगर अवामी सहूलियात के क़ियाम की मंजूरी देने की अपील की गई। बाबूराम नायक ने कहा कि इस मौजूदा मंसूबे का मकसद बंजारा बरादरी की अजीम तारीख, सखाफत और रिवायत को महफूज रखते हुए आने वाली नस्लों तक पहुँचाना, नौजवानों को तालीम और हुनरमंदी के मौक़े फ़राहम करना, सयाहत को फ़रोग़ देना और समाज की हमाजहत तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद रखना है। उन्होंने बंजारा बरादरी के तमाम अफराद से अपील की कि इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए वो मुसलसल ताउन करें। बारिश के मौसम को जहन में रखते हुए भीमगल म्यूनिसिपल हुक्काम ने होटल्स, स्वीट होम्स, बेकरियों, फास्ट फूड सेंटर्स और दीगर खाने पीने की दुकानों के मालिकान को
खुसूसी हिदायत जारी की। सफाई, क्वालिटी फूड और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आगाही पैदा करने के लिए नोटिस जारी की गई। म्यूनिसिपल हुकाम ने भीमगल कस्बे में होटल्स, स्वीट होम्स, बेकरियों, फास्ट फूड सेंटर्स और दीगर खाने पीने की दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी किया। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए सारिफीन को साफ मियारी खुराक और पीने का साफ पानी फराहम करने की तलकीन की गई। उन्होंने कहा कि होटल्स, चिकन और मटन सेंटर से निकलने वाला कचरा तालाबों और मरकजी सड़कों के अतराफ फेंकने के बजाय म्यूनिसिपल कचरा उठाने वाली गाड़ियों में फेंका जाए। अहदेदारों ने इंतबाह दिया कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें तेलंगाना म्यूनिसिपल एक्ट के मुताबिक जुर्माना आयद किया जाएगा। इस मौके पर वार्ड अफसरान बी राजेश्वर, एम राजेश्वर, म्यूनिसिपल अमला और दीगर भी मौजूद थे। सीपीएम एरिया सेक्रेटरी ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मूसरा गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अमले की शदीद कमी है और गरीब लोगों को सरकारी इलाज नहीं मिल रहा। उन्होंने खबरदार किया कि खाली आसामियों को फौरी तौर पर पूर किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। सीपीएम पार्टी कायदीन ने मूसरा मंडल मुस्तकर में वाक़े सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में आने वाले मरीजों से बात की और दरियाफ्त किया कि उनका इलाज कैसे हो रहा। इस मौके पर बात करते हुए सीपीएम पार्टी के एरिया सेक्रेटरी ने इल्जाम लगाया कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से फंड्स ना मिलने की वजह से तिब्बी निज़ाम अफरा तफरी का शिकार हो गया। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि आयुर्वेदिक अस्पताल की इमारत ना होने की वजह से एक छोटे से कमरे में आयुर्वेदिक दवा फराहम की जा रही। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए फौरी तौर पर नई इमारत तामीर की जाए। उन्होंने झाड़ू देने वाले अटेंडेंट और दीगर आसामियों को तब्दील करने का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत हस्पतालों की तरक्की पर तवज्जो दे और गरीब अवाम को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करे। इस मौके पर मूसरा मंडल सेक्रेटरी एम मलेश, कायदीन सत्यनारायण, लक्ष्मण और दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद बाईपास रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार टाटा एस गाड़ी और आइचर गाड़ी में तसादुम, ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी। निजामाबाद के बाईपास रोड पर न्यू कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तेज रफ्तार टाटा एस गाड़ी सामने से आने वाली आइचर गाड़ी से टकरा गई। हादसा ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि टाटा एस गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और ड्राइवर गाड़ी में फंसकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुकामी अफराद ने काफी जदोजहद के बाद नाश को बाहर निकाला और सरकारी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। इख्तिताम से खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा वोट रखना कानूनी जुर्म। फॉर्म 7 के जरिए इजाफी वोटों को हज़फ करे जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। अवाम को गुमराह करना बंद करे, फिल्मी डायलॉग से सियासत नहीं चलती, अगले इंतखाबात में अवाम जवाब देगी। आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी पर एरावती अनिल का तीखा वार। निजामाबाद बाईपास रोड पर अलमनाक सड़क हादसा, टाटा एस गाड़ी और आइचर में तसादुम, ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।